Good morning all of you. Yes beta, today we will do exercise 6b. Exercise 6b. We have done exercise 6a integers. Clear? Now in this exercise beta we will do addition of integers. What we will do? Addition of integer. Addition of integer we can do in two different ways. First one on number line and second one without number line. Yes. What we will do in this exercise, addition on number line, addition on number line, second one, addition without number line. Clear? Addition without number line. Yes. How you will do addition on number line? नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करोगे? फर्स्टली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. वी विल टेक वन एग्जांपल एडिशन ऑन नंबर लाइन. सपोज इट वी हैव अ क्वेश्चन 3 plus 2. Represent solve this question 3 plus 2 on number line. How you will solve? Firstly you will draw a number line. Yes. No need to write the number negative numbers because we have no negative number here. So no need to write the negative number. Start from 0. Only positive numbers. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. जितने आपको चाहिए. Clear? Now firstly you will do. What you will do? आपने 3 में add करना है 2 को. Start from 3. Firstly circle 3. 3 पे पहुंच गए. Now 2 ऐड करने हैं. मतलब पॉजिटिव 2 है. आगे को जाना है हमने. 2 प्लस करने हैं. जब भी हम किसी चीज में प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ बड़ा नंबर ही आएगा. क्लियर? सो कितने स्टेप्स हमने क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है. यू हैव टू टेक 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स को आगे चला गया. सो आपके पास क्या आएगा? 5. Clear? What you will get? You will get 5. So 5 is your answer. In this way you can addition of integers on number line. Clear? Now we will take one more example. Here we have two positive numbers. Suppose it one is negative, one is positive. Otherwise both are negative. Then how you will solve? We will take one example of negative integers. So here suppose if we have this one is negative. Clear? -3 plus 2. Now solve it on a number line. So center part is 0. Center में 0 ही होता है. अब यहाँ पे नेगेटिव ही है ना. So you have to write the negative numbers also. -3 means आपको -3 से तो start ही करना है. 1, -1, -2, -3, -4, -5, so on जितने आपको चाहिए. Yes. Now firstly stand on -3. -3 पे खड़े हो जाओ. अब हमने 2 पॉजिटिव मीन्स 2 स्टेप्स आगे जाना है. प्लस करना है. प्लस उधर को जाता है, हमेशा आगे बढ़ता है नंबर को लेके. So 2 steps more. 1, 2. What you will get? You will get -3. This one the addition of integers on number line. Clear? Now next step is, next we have the concept addition without number line. How you will do addition without number lines? Without number line से आप addition कैसे करोगे integers की? Simple addition तो everybody knows. How you will solve 3 plus 2, that is the 5. Clear? But in integers means if you have negative number, one is negative, one is positive, then what you will get? Otherwise both numbers are negative. Now yes, we have 2 rules for this concept. This one concept we have 2 rules. Keep in your mind rule number 1. If both are positive, अगर हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा. सपोज इट 3 plus 2, 3 भी
हमारे पास प्लस का है, 2 भी हमारे पास प्लस का है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, मीन्स +3 प्लस +2, आंसर हमेशा आपके पास प्लस में ही आएगा। क्लियर? इफ यू हैव 2 numbers in positive form, then you will get the answer in positive form. Clear? If both numbers are in negative, both numbers are in negative, अगर आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव में है, then your answer should be in negative. Clear? अगर आपके पास दो नंबर्स नेगेटिव में है, उसकी एडिशन करनी है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, नॉट ई ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर? एंड एडिशन, इफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, देन योर आंसर इज आल्सो इन पॉजिटिव फॉर्म। इफ बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव, देन योर आंसर इज आल्सो इन नेगेटिव फॉर्म। क्लियर? अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्लियर? करनी एडिशन ही है, बिकॉज वी आर डूइंग एडिशन। करोगे एडिशन ही, बट साइन किसका लगाओगे? इफ बोथ आर पॉजिटिव यू विल राइट हियर पॉजिटिव, इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन यू विल राइट द साइन ऑफ नेगेटिव। ओके, ये तो आपके पास कंसेप्ट है। अगर दोनों सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, पता चल गया, दोनों नेगेटिव है, तब भी पता चल गया। बट समटाइम वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, अनलाइक साइंस है। These are the like signs, both positive like है, both negative like है। If you have unlike signs, अगर एक पॉजिटिव है, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, then what you will take the sign, कौन सा साइन लोगे? See here, your second one, the second rule is here, first rule like signs है। क्लियर? अगर आपके पास like signs है। नेक्स्ट है अगर आपके पास अनलाइक साइंस है, अनलाइक साइंस है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। सपोज इट प्लस का 3 1 पॉजिटिव है, 1 नंबर नेगेटिव है, उसकी एडिशन करनी है आपने। क्लियर? तो साइन किसका लगाओगे? किसका लगाओगे? जो नंबर बड़ा होगा आपके पास। क्लियर? यस। अब देखो 3 में हमने 2 माइनस करने हैं, 3 में 2 क्या करने हैं? माइनस। क्या आएगा 3 माइनस 2? 1। 3 माइनस 2 क्या आएगा? 1। बट साइन किसका लगाओगे? यहाँ पे तो प्लस का साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, किसका साइन आएगा? साइन हमेशा जो बड़ा होता है, जैसे घर में जो बड़ा होता है उसकी ज़्यादा चलती है ना, सो यहाँ पे भी सेम है, जो इनमें से बड़ा है उसी की ज़्यादा चलेगी। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना 2 से, सो 3 के पास कौन सा साइन है? पॉजिटिव, सो यू विल राइट हियर पॉजिटिव। क्लियर? अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है। क्लियर? 3 में से हमने 2 माइनस करने हैं, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? तो आपने क्या करना है? माइनस करनी है। कैसे करोगे? 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो सबको पता है 1 होता है, बट किस चीज का आएगा 1? नेगेटिव वाला 1 आएगा, पॉजिटिव वाला 1 आएगा। 1 भी तो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव 1 भी है, नेगेटिव 1 भी है। कौन सा आएगा? जो नंबर बड़ा है, अभी बता के हटी हूँ ना, जो बड़ा है उसी की चलती है। बड़ा साइन किसका है? बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है? बड़ा तो माइनस को लेके बैठा है, सो यू विल राइट हियर माइनस। क्लियर? दिस एडिशन ऑन नंबर लाइन, how you can do? Second one, addition without number line. नंबर लाइन पे एडिशन मैंने आपको बता दी, इसके लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेकेंड वन, विदाउट नंबर लाइन के लिए you have 2 rules. One is like sign, second is unlike sign. Like signs means if both are positive, then your answer is also in positive form. If both two numbers are negative, then your answer is also in the form of negative. Unlike if one is positive, one is negative, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, उसी की चलेगी। यहाँ पे -3 बड़ा है, 3 के साथ नेगेटिव साइन है, so your answer is also in negative form. Clear? These two concepts are here, addition on number line and addition of integers without number line. Now we have some properties.
Now we will discuss about these properties. Properties are here. Which one property? Closure property of closure property, commutative property, associative property, existence of additive identity, existence of additive inverse, successor and predecessors of an integers. Clear? Now firstly we will discuss first property, that one's a closure property. Clear? Yes, now see here properties of additions on integers. अब हमें प्रॉपर्टीज किसकी करनी है? एडिशन की करनी है, नॉट ऑफ सब्ट्रैक्शन. वी विल डिस्कस हियर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स. I have already told we have these types of properties. First one is a closure property. What is the meaning of closure property? Yes, in closure property, if we have two integers a and b, otherwise we will take one example of 2p. Clear? If we have two integers, if we will take 2 3, then you will say, ma'am, why you haven't take -2 or 3? So we will take a or b. A or b both are integers. They it can be in positive form, it can be negative, कुछ भी हो सकता है. Clear? Integers means all positive numbers, all negative numbers including 0, these are the integers. So we will take general form, means a and b. If we have two numbers, both are integers, suppose a and b both are integers, then in addition में भी जो ऐड करके जो नंबर आएगा हमारे पास a plus b, then a plus b, जब हम इसको ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी गेट द नंबर c, इट इज ऑल्सो इंटीजर. ये भी क्या होगा? इंटीजर्स. इफ वी विल डू एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो भी क्या होगा? इंटीजर्स. दैट मीन्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी. इन क्लोजर प्रॉपर्टी the sum of two integers is always an integer. Clear? Sum of two integers is always an integer. अगर मैं आपसे पूछूं 2 plus 3 equal to 5, closure property है? Yes, because we have 3 और 2 both are integers. जब हमने उसको ऐड किया we get 5. This is also an integer. So closure property apply हो रही है उसमें. Now commutative property. What is a commutative property? Commutative property, we have two integers can be added in any order. दो integers को हम किसी भी order में add कर सकते हैं. Means 2 plus 3 is also 5 and 3 plus 2 is also 5. Clear? We can write a plus b, otherwise b plus a. Both give the same answer. Clear? We get same answer in both cases. दोनों cases में हमारे पास आंसर तो सेम ही आएगा. 2 plus 3 5, 3 plus 2 5. Clear? So in commutative property we can write the order in any way. Interchange. Now associative property. What is the associative property? 3 or more integers can be grouped in any order. जैसे हमने यहाँ पे टू इंटीजर्स का ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी कैन राइट द हम इसमें हम 3 इंटीजर्स का इंटरचेंज मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं. सपोज इट a प्लस b प्लस c में को ऐड करके, चाहे उसमें बाद में a ऐड कर लो या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो, a प्लस b को ऐड कर लो, बाद में c को ऐड कर लो. आंसर तो सेम आएगा. हाउ? सी हियर 2 3 5. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस नंबर. अगर मैं 2 plus 3 को पहले ऐड करूं, 2 plus 3 5, उसमें 5 ऐड करूं, दैट इज 10. ऐसे भी कर सकती हूँ. अदरवाइज अगर मैं बोलूं 2 3 5, अगर मैं पीछे वाले दो नंबर्स को पहले ऐड कर लूं. क्लियर? 5 plus 3 8, उसमें मैं 2 ऐड करूं, तब भी मेरे पास 10 आएगा. Clear? Mean in associative property we can write 3 or more integers. यहाँ पे
इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। दिस वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ existence of additive identity. Existence of additive identity means sum of any integer and 0 is the integers itself. 0 is the additive identity. 0 को हम क्या बोलते हैं? additive identity बोलते हैं। क्लियर? 0 को क्या बोलते हैं? additive identity means आपके पास क्या आएगा? अगर मैं किसी नंबर में 0 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? वो नंबर इटसेल्फ आएगा हमेशा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 3 + 0 आंसर इज 3। क्लियर? अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर वही वो वाला नंबर ही आएगा। दिस वन द एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी सम ऑफ एनी इंटीजर्स एंड 0 इज द इंटीजर इटसेल्फ। वो इंटीजर खुद ही आता है आंसर। क्लियर? Now existence of additive inverse. Additive inverse means for any integer a there exists its opposite minus a such that their sum is 0. Clear? अगर मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स लेती हूँ सेम मीन एक पॉजिटिव में लूँ एक नेगेटिव में लूँ then you will get answer is 0. Clear? Your answer is 0 means a and minus a are called opposite or negative or additive inverse of each other. ये आपस में दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक प्लस में जा रहा है एक माइनस में जा रहा है मीन्स इनवर्स है, उल्टे हैं। क्लियर? एक उधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है एक उधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर क्या आएगा? दोनों मैच तो कभी होंगे नहीं। आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? Now successor and predecessor. बेटा successor and predecessor you can already done the previous classes. Starting से हम second class से start हो जाता है। Successor means one step आगे जाना। Predecessor pre means p से pre means पीछे one step पीछे आना। Successor if we have number 2 then what is the successor of 2 means only one step you have to move फॉरवर्ड। एक स्टेप ही आगे जाना है। 2 से आगे क्या आएगा? 1 स्टेप आगे -3 अदरवाइज यू कैन ऐड 1। इफ यू हैव टू फाइंड द प्रीडिसेसर फॉर एग्जांपल 2 इसका प्रीडिसेसर क्या आएगा? 1 स्टेप बैक। 1 स्टेप बैक मीन्स 1 माइनस कर दो 2 से पहले क्या आता है? 1। Clear? This one is the successor and predecessor. Now beta once again see this property closure property. If you have two integers then sum is also is in integer form. Commutative property two numbers को आप in addition you can change the order. Answer you will get same. Associative property you can take 3 numbers इसका भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो you will get the same answer अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। Existence of additive identity is 0 means अगर 0 ऐड करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जो नंबर है वही जो इंटीजर यहाँ पे है वही इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा means additive identity क्या है? 0। Existence of additive inverse क्या है? opposite। क्लियर? अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव ले लो दैट इज एडिटिव इनवर्स। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर you know very well. Successor means you have to move 1 step forward and predecessor you have to move 1 step back. Clear? Now beta we will start exercise 6b. Come on the exercise 6b. Clear? Your first question is using the number line write the integer which you have to solve this one question using number line. Clear? Your first question is 5 more than 3. You have to solve this one question on number line. So firstly you will draw number line. Here we have no negative numbers so no need to write the negative numbers. Clear? Start from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on. Clear? Now what you will do firstly you will stand on number 5 पे खड़े हो जाओ जो पहले दिया हुआ है वहां पे एक बार खड़े हो जाओ। क्लियर? फिर चेक करो कि उसने आगे जाने को बोला है पीछे आने के लिए बोला है जैसे उस क्वेश्चन में वो है जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे।
मोर देन मीन्स ज़्यादा आगे जाके ही मिलेगा। क्लियर? हाँ जी, तो आपने क्या करना है, आगे जाना है। मोर देन मीन्स प्लस, सो कितने आगे जाना है, 3 स्टेप्स, 1 2 3, क्या आ जाएगा, वट यू विल गेट 5 मोर देन 3, 5 में जब आपने 3 ऐड किए तो देन यू विल गेट आंसर इज 8। क्लियर? सिमिलरली बेटा you can do next one question. Next one question is 4 more than -3. See here, 4 more than -3. See here, 4 more than -3. How you will solve? First we stand on 4 पे खड़े हो गए। अब मैंने -3 मीन्स मैंने पीछे जाना है, नेगेटिव नंबर हमारे पास पीछे को आएंगे। क्लियर? नॉट फॉरवर्ड जाके नहीं हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, माइनस करना है मीन्स पीछे जाना है। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स, 1 2 3, यू विल गेट 1। क्लियर? अगर आपके पास प्लस है, प्लस नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मोर देन तो करना है, -3 करना है, मोर देन मीन्स नेगेटिव नंबर की तरफ जाना है आपने। क्लियर? नाउ 6 लेस देन 2, लेस देन मीन्स कम हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम बैक जाएंगे, मोर देन जब हम आगे जाएंगे। अदरवाइज मोर देन इज यूज फॉर पॉजिटिव। मोर देन मीन्स हम जैसे कीवर्ड्स करते हैं ना एडिशंस के, तो उसमें मोर देन इज अ कीवर्ड ऑफ एडिशन। सिमिलरली लेस देन इज अ कीवर्ड ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्शन में हम पीछे कम की तरफ आती हैं। क्लियर? सिमिलरली यू विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग द नंबर लाइन. Similarly this one question you will do on a number line as we have done here. Here we have wording means more than, plus, less than, minus. Here you have direct sign. Clear? 3 plus 4. Firstly you will stand on 3, after that you will take 4 steps forward, so you will get on number 7. Clear? Now question number 3, add the following without using number line. बेटा इसमें आपने नंबर विदाउट नंबर लाइन के आपने इसको एडिशन करनी है। See on the board. See first question, -17 plus 24 means you have to subtract 24 में से क्या subtract करने हैं, 17 subtract करने हैं 24 में से। Yes, 24 में से जब 17 subtract करोगे you will get 7. You will get 7. बट अब साइन की प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, सेकंड क्लास का बच्चा भी कर देगा कि 24 में से 17 माइनस करने हैं। बट नाउ यू हैव टू पुट द साइन हियर ऑल्सो। बट विच साइन यू विल यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव? मैंने अभी बताया जो नंबर बड़ा होगा उसी का राज चलता है। क्लियर? इनमें से बड़ा कौन है, 24। 24 कौन सा साइन साथ लेके चल रहा है, प्लस का, so you will write here positive. Clear? You will write here plus sign. Clear? Now next question for 26 में हमने क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन see here, 26 हमने ऐड करना है -45 मीन्स माइनस है ना, माइनस करना है हमें। 45 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 26। जो आंसर यहाँ पे आएगा 45 में से 26 माइनस करके यहाँ पे 319। अब किसका आएगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, दोनों में से कौन बड़ा है, 45 कौन सा साइन लेके चल रहा है, माइनस का, सो यू विल राइट हियर नेगेटिव साइन। क्लियर? सिमिलरली बेटा यू कैन डू थर्ड पार्ट ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है थर्ड की तरह, फाइंड द सम। इसका यू हैव टू फाइंड द सम फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स हैं, एक ये वाला है, एक आपके पास ये वाला है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको क्या करना है, 1000 में क्या करना है, माइनस करने हैं 4761। जब आप 1000 में से
हमेशा सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बिगर नंबर ऊपर आता है बेटा। बिगर नंबर कौन सा है? 4761। जब इसमें से आप 1000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1673, ये आ गया। बट अब इसके साथ आपके पास ये तो आ गया 3765, बट साइन अब किसके साथ कौन सा लगाओगे? हमेशा इंटीजर्स में आपको साइन भी साथ में लगाना पड़ता है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो आपके पास माइनस का है। यस, बिगर नंबर वन सा बिगर नंबर दिस वन एंड विच साइन हियर? negative, so you will write here negative sign. Clear? In this way you can solve the parts of question number 4. Otherwise we can do one more question. Here we have three terms are here, three numbers are here. See here question number part number 2. Now we have to find the sum of these three numbers we have. First number this, सेकेंड नंबर दिस एंड थर्ड नंबर दिस। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम। क्लियर? पहले हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 2 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? 2 टर्म्स का हम क्या करेंगे? सम फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था अब हमने सम फाइंड आउट करना है, इसका और इसका। तो क्या करोगे? दोनों को प्लस करोगे। 9 + 5 14, 1 carry 13, 8 + 5 13 + 1 14, 1 carry 6 7। You have 744। 744 तो आपके पास आ गया प्लस करके, बट साइन किसका लगेगा? अगर आपके पास लाइक साइंस हो तो लाइक साइन ही लगता है। दोनों आपके पास लाइक साइंस है मीन्स दोनों नेगेटिव साइन है, सो यू विल राइट हियर नेगेटिव। अब हमें इसकी प्लस करनी है 187 के साथ। क्लियर? दोनों को प्लस करो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब आपके पास 2 सेम टर्म्स आती हैं साइन उसी का लगेगा। अंडर एडिशन है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? एडिशन। क्लियर? ओके। यस, 7 + 4 11, 1 कैरी, 8 + 12 + 1 13, 1 कैरी 8 टाइम। साइन किसका लगेगा? नेगेटिव, क्योंकि आपके पास बोथ आर नेगेटिव साइन। हमेशा नेगेटिव साइंस में आपके पास अगर 2 साइन सेम है तो आपके पास वही साइन लगेगा। क्लियर? सिमिलरली यू कैन डू द पार्ट 3 एंड पार्ट 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अभी बताया था ना, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यस, क्वेश्चन नंबर 5, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कम ऑन द पेज नंबर 111। एडिटिव इनवर्स मीन्स उसका रेसिप्रोकल, उस नंबर का ऑपोजिट साइन। एडिटिव इनवर्स, क्लियर? ऑपोजिट, नेगेटिव, ये हम यूज़ करते हैं। यस, अब हमने जैसे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है 72 का। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये प्लस का 72 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नेगेटिव 72। So you will write the answer is -72. Clear? See here. Question number 5, additive inverse means उसका क्या करना है? Opposite sign। तभी उनको प्लस करके आपके पास 0 आता है ना एडिटिव में। Yes, ये पॉजिटिव है, so you will write here negative. Clear? Additive inverse means opposite sign. 0 neither positive nor negative, so you will write 0 as it is. This one is negative form, you will write in positive form. Opposite sign के साथ लिखना है वो नंबर। Clear? 1 positive, you will write here negative. Clear? Now, question number 6. In question number 6, find the successor. Successor, everybody knows successor means to say you have to add 1. Clear? Means you have to move 1 step forward. एक step आगे जाना है, इसमें 1 add करना है। 1 ऐड करोगे, यस, प्लस ये माइनस, क्या करोगे? माइनस। सो 99 में से 1 माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा? दिस वन नंबर, इससे 1 तो साइन कौन सा नंबर पड़ा है? ये वाला। इसके साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव, सो यू राइट हियर नेगेटिव। क्लियर? 0 में से 1 स्टेप बैक, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे 0, 1 स्टेप बैक, यहाँ पे क्या होता है?
-1, अदरवाइज यू कैन सब्ट्रैक्ट -1, 0 में से -1, ये प्लस का है, ये माइनस का, 1 में से 0 गया, 1 बड़ा कौन है इसमें से 1 के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, सिमिलरली यू कैन सी हियर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सक्सेसर है इसमें, नो यू विल डू सब्ट्रैक्ट, क्लियर, यू विल डू ऐड, प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 ऐड करोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 से 1 स्टेप, सक्सेसर मीन्स यू हैव टू 1 स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाना, ठीक है, यू विल गेट 1। Similarly beta, you can solve part number 3 and part 4. Now question number 7, find the predecessor. Predecessor means you have to move 1 step back. See here, 1 step back means you have to subtract 1. 1 में 0 में से 0 माइनस करेंगे 1, तो कौन सा बड़ा है 1 बड़ा है, उसके साथ साइन कौन सा नेगेटिव, क्लियर। अदरवाइज यू कैन थिंक अ नंबर लाइन कि अगर वो वाला नंबर वहाँ पे पड़ा है, सक्सेसर मीन्स मेरे को उस नंबर से आगे जाना है, तो वो कौन सा नंबर आएगा, प्रीडिसेसर मीन्स मैंने उस नंबर से पीछे जाना है। यू कैन थिंक अ नंबर लाइन, क्लियर, कि यहाँ पे मेरे पास नंबर पड़ा है तो आगे जाके उससे सिर्फ एक नंबर ही आगे जाना है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ बस ट्रेवल 56 किलोमीटर टू द नॉर्थ of Delhi and then further travel 111 kilometer to the south from there. How far the bus finally from Delhi? Clear? Yes, beta. Have you understand how you will solve question number 7 means predecessor. Now question number 8. Question number 8. Listen very carefully. A bus travel 56 kilometer to the north of Delhi. Clear? See here, beta. How you will solve what is in this question? Question number 8. Yes, a bus travel 56 kilometer to the north of Delhi. Clear? North हमारे पास ऊपर को होता है, means ऊपर वाला क्या होता है plus cos 8. We have here Delhi. North means वो ऊपर को जा रहा है, कितना जा रहा है 56 किलोमीटर। क्लियर, बस कितना ट्रेवल कर रही है 56 किलोमीटर। सपोज यू आर हियर एंड 56 किलोमीटर ट्रेवल करके आपके पास आप वहां पे पहुंच गए, फिर आपने क्या किया, देन फर्दर आपने फिर से ट्रेवल किया 110 किलोमीटर टू साउथ फ्रॉम हियर देयर। यहाँ से आपने फिर से 110, साउथ हमारे पास नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर, फिर यहाँ से आपने दोबारा ट्रेवल किया, वो आपने कितना किया 110 किलोमीटर ना, 110 किलोमीटर। पहले आप यहाँ पे थे, यहाँ से जब आप यहाँ गए 56 किलोमीटर था, फिर आपने यहाँ से दोबारा ट्रेवल यहाँ पे पहुंचे 110 किलोमीटर है। यस, हाउ फार द बस फाइनली फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ से ये दिल्ली आपके पास, क्लियर। अब बस दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पे है, क्लियर। दिल्ली से आप 56 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, क्लियर। फिर यहाँ से आप 110 किलोमीटर फिर से साउथ की तरफ आ गए, ठीक है, साउथ की तरफ आ गए। अब बताओ जो बस है वो दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे है, हाउ फार मींस कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या करोगे, यू विल डू सब्ट्रैक्ट। ये आपके पास 110 है, 56 ऊपर है, तो हमें ये चीज बतानी है, क्या करोगे, माइनस 110 किलोमीटर माइनस 56 किलोमीटर, यू विल गेट 54 किलोमीटर, क्लियर, यू विल गेट 54 किलोमीटर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रोहन ओपन हिज बैंक अकाउंट, यस, ऑन 1 जून 2019 बाय डिपॉजिटिंग, उसने इतने पैसे डिपॉजिट करवाए, कितने 6000, कितने रुपए 6,985 रुपीज उसने क्या करवाई है डिपॉजिट। अब वीक लेटर ही विथड्रू, उसने कितने पैसे निकलवा लिए 4730 रुपीज उसने निकलवा लिए। इतने पैसे उसने डिपॉजिट करवाए थे, उसने विथड्रू करवा लिए 20 उसने निकाल लिए, तो क्या करोगे माइनस, यस
जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आया, दिस वन अमाउंट। क्लियर। आफ्टर दैट उसने क्या किया, फिर उसने लास्ट डे फिर से इतने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, कितने, 2395 डिपॉजिट करवाए हैं। फिर क्या करोगे, प्लस, विथड्रॉ मीन्स निकलवाए हैं तो क्या करोगे, नेगेटिव। अब क्या करोगे, पॉजिटिव, 5 + 5 10, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 1 3 + 2 5 + 1 6, 2 + 2 4. So you have 4650 rupees. What would be his bank balance on the first day of July? तब उसके पास ये सारा 2000 आपके पास 2019 जून का था। जून 2019 जून में उसने 1 जून को इतने पैसे डिपॉजिट करवाए, फिर विथड्रॉ करवाए, फिर से डिपॉजिट करवाए, तो कहते हैं जुलाई मंथ में उसके पास कितनी अमाउंट बच गई। दिस वन इज here. So these question number 8 and 9 beta you will do with the proper statement. Clear? You will do the proper short statement. Now question number 10, find an integer p such that you have, question number 10 beta, question number 10 you have p plus minus 5 equal to 0. You have to find the integer p. आपको सिर्फ p इंटीजर फाइंड आउट करना है। हाउ यू विल फाइंड बेटा, यस, हाउ यू विल फाइंड बेटा, यू हैव टू फाइंड p। आपने सिर्फ p लेके आना है इधर, यहाँ से सब कुछ रिमूव करना है। जो आपके पास यहाँ पे -5 पड़ा है, जो इंटीजर पड़ा है उसको भी रिमूव करना है। मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ p फाइंड आउट करना है, मीन्स मेरे पास यहाँ पे सिर्फ p ही होना चाहिए। सी बेटा, अगर मैं आपके पास ये है, मेरे पास यहाँ पे p कैसे आएगा, अगर ये 5 रिमूव हो जाए, 5 कैसे रिमूव होगा, आपने पढ़ा है ना कि अगर मैं मतलब 5 रिमूव कब होगा, मीन्स मेरे पास 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब दो इंटीजर्स ऑपोजिट साइन के हो, ऑपोजिट मीन्स एक प्लस का एक नेगेटिव का, जब दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे पास 0 आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास -5 तो पड़ा है, अब मेरे को कौन सा 5 चाहिए, पॉजिटिव 5। मैं यहाँ पे पॉजिटिव 5 ले लेती हूँ, इधर भी मैं पॉजिटिव 5 लूंगी। ऐसे थोड़ा ना सिर्फ इधर वाली टर्म को तो मैंने 5 दे दिया, उधर वाला बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। दोनों को दूंगी, दोनों को 5 दे दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे मैं इन दोनों को ऐड पहले कर लूँ, चाहे मैं इन दोनों को ऐड पहले कर लूँ, सेम बात है। मैं पीछे वाले दोनों को ऐड कर देती हूँ। जब मैं दोनों पीछे वालों को ऐड करूंगी तब मेरे पास क्या आएगा, अभी आपने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पढ़ा था ना, उसमें क्या था, अगर आपके पास दो इंटीजर्स ऑपोजिट साइंस के हो देन यू विल गेट आंसर इज 0। यू विल गेट 0। इधर आपने एडिटिव आइडेंटिटी भी रीड की है कि अगर हम इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही इंटीजर ही आता है। मीन्स अगर मेरे पास आपको वैसे भी छोटी क्लासेस में अभी भी आप रीड करके आए हो, जो आपने छोटी क्लासेस में एडिशन फैक्ट्स रीड किए हैं, सपोजिट आपके पास 2 कैंडीज है, मैंने आपको 0 कैंडी दे दी, मीन्स आपके पास तो 2 ही रहेंगी। 5 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो 5 ही आएगा। अदरवाइज ये एडिटिव आइडेंटिटी भी है आपके पास कि अगर हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करें तो वो इंटीजर खुद ही आंसर आता है। देन p में मैं 0 ऐड करूंगी, वहीं से फिर से एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या करती है कि अगर मैं किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करूं तो मेरे पास वही इंटीजर ही आता है। तो मीन्स you have p equal to 5. Then now beta your exercise 6p complete. Beta if you have any problem then you can discuss with me. Thank you. Have a nice day.